Since myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to our first lecture of this chapter that is nuclear chemistry. अभी तक हमने जितने रिएक्शंस देखे हैं, आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, उन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है. The reactions which we have studied so far involve electrons which are outside the nucleus. In this lesson, we will look at the changes that affect the nucleus. इस लेसन में हम उन चेंजेस की बात करेंगे जो न्यूक्लियस पे अफेक्ट करती है. फर्स्ट, वी विल एग्जामिन द कॉमन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड लर्न हाउ टू राइट इक्वेशंस फॉर देम. सबसे पहले हम कॉमन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से उनके लिए इक्वेशंस लिखते हैं. बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. Some observations of nuclear reactions will be considered and the models that have been developed to explain these observations will be discussed. तो इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल्स डेवलप हुए हैं, हम उन मॉडल्स को देखेंगे. फाइनली, सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री will be discussed. Let us look at the syllabus of this chapter. The syllabus includes radioactivity, isotopes and isobars, properties of alpha, beta and gamma rays, kinetics of radioactive decay, carbon dating, stability of nuclei with respect to proton-neutron ratio, and a brief discussion of fission and fusion reactions at the end. Some substances such as uranium and their compounds spontaneously emit active invisible radiations. तो चाहे यूरेनियम प्योर एलिमेंट ले लें या यूरेनियम का कोई भी कंपाउंड, तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप कुछ एक्टिव इनविजिबल रेडिएशंस इमिट करते हैं. दीज रेडिएशंस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. नंबर 1, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. जैसे एक्सरे अगर आपका लिया जाता है तो एक्सरे में जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पे इमेज बन जाती है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज एक्सरे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. सिमिलरली यहां पर भी जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. नंबर 2, दे आयोनाइज गैसेस. आयोनाइज करती हैं ये गैसेस को. इसका मतलब क्या है कि दे नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. अगर किसी गैस का इलेक्ट्रॉन ये रेडिएशन आकर नॉक ऑफ कर दे तो पीछे से क्या बचेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. Number 3, they penetrate solid matter. And number 4, they excite luminosity in substances like zinc sulfide. अगर जिंक सल्फाइड जैसे सब्सटेंसेस पे ये रेडिएशंस गिरती हैं तो ये जिंक सल्फाइड ग्लो करने लगता है, जिसको हम कहते हैं luminosity. So these are the properties of the radiations which are emitted by radioactive substances such as uranium. Such substances are said to be radioactive. यानी substances जो कि radiations को spontaneously emit करते हैं, ऐसे substances are called as radioactive and the phenomena is known as radioactivity. This phenomena was discovered by Henry Becquerel. Uranium, radium, thorium, protactinium and radon exhibit natural radioactivity. ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली रेडियोएक्टिव हैं, यानी दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर and they are also radioactive. Several
lighter radioactive elements have also been produced by what are known as transmutations. So mankind has also prepared some lighter radioactive isotopes, yeah, lighter radioactive elements, and this process by which they are prepared are called as transmutations. The nature of radiations. By subjecting the radiations coming from a radioactive substance such as radium placed in a lead cavity to electric and magnetic fields, Lord Rutherford established that they may be separated into three different kinds, namely alpha, बीटा and gamma rays. तो अगर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया सच एज रेडियम और उसको एक लेड की कैविटी में रख दिया, अब उसमें से जो निकलने वाली रेडिएशंस है उसको लॉर्ड रदरफोर्ड ने स्टडी किया बाय सब्जेक्टिंग द रेडिएशंस टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ऐसा करने पर उन्होंने पाया कि ये जो इमिटिंग रेडिएशंस है उनको थ्री कैटेगरीज में सेपरेट किया जा सकता है, नेमली अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. और रदरफोर्ड का जो सेटअप था वो कुछ इस तरह से था. उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और उसको लेड की शील्ड में रखा. लेड में ही क्यों? क्योंकि लेड एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडिएशंस को इधर उधर फैलने नहीं देगा, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. सिर्फ जहां से आपने होल छोड़ा हुआ है वहीं से रेडिएशंस बाहर की तरफ निकलेंगी. तो here is a radioactive substance which is kept in a lead cavity. अब इस radioactive substance से जो रेडिएशंस निकलेंगी, इन इमिटिंग रेडिएशंस को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्टडी किया. तो ये मान लेते हैं नेगेटिव साइड ऑफ द फील्ड है और ये पॉजिटिव साइड है. तो ऐसा पाया गया कि ये जो रेडिएशंस है दे स्प्लिट इनटू थ्री. वे रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं उन रेडिएशंस को नाम दिया गया बीटा रेडिएशंस. वे रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको नाम दिया गया अल्फा रेडिएशंस. और वे रेडिएशन जो विदाउट डिफ्लेक्शन एज इट इज निकल जाती है दे वर कॉल्ड एज गामा रेडिएशंस. अब हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन. तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी एंड हियर वी विल लुक एट द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. तो जो पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं दैट इज नेचर. अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, यानी He2+ से मिलकर बनती हैं अल्फा रेज. बीटा रेज दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बीटा रेज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स. gamma rays are electromagnetic radiations similar to X rays but of much shorter wavelength. तो गामा रेज की वेवलेंथ काफी शॉर्ट होती है एक्स रेज से भी, यानी इनकी एनर्जी क्या होती है एक्स रेज से भी ज्यादा. और एक्स रेज आप जानते हैं हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाते हैं. तो गामा रेज सोचिए कितनी ज्यादा हाई एनर्जी की रेज होती होंगी. They are even stronger than they have even higher energy than X rays or much shorter wavelength. The second property is electric charge. Alpha rays का positive charge होता है +2 unit of positive charge. Beta rays have 1 unit of negative charge and gamma rays are simply electromagnetic radiations, so they don't have any charge. मास की बात करें तो अल्फा रेस का मास होता है 4 AMU. बीटा रेस बीइंग इलेक्ट्रॉन्स दे हैव अ मास इक्वल टू 1/1837 AMU. एंड गामा रेस दे आर सिंपली रेडिएशंस, तो इनका कोई रेस्ट मास नहीं होता है. हाँ, आइंस्टीन ने बताया था कि दे हैव अ रिलेटिविस्टिक मास, क्योंकि ये इतनी हाई स्पीड से चल रही होती हैं
तो इतनी हाई वेलोसिटी की वजह से इनके पास एक रिलेटिविस्टिक मास आ जाता है। बट रेस्ट मास की बात करें तो गामा रेज का रेस्ट मास 0 होता है। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम अल्फा बीटा और गामा रेज की। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज स्पीड। द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ये वेरी करती है। अलग अलग सब्सटेंस की अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग हो सकती है, बट जनरली इट इज अबाउट 1/20th ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बीटा रेस के लिए द स्पीड वेरीज फ्रॉम 3 to 99% of the velocity of light, and gamma rays have velocity equal to the velocity of light. So next is relative penetrating power। मतलब मैटर के अंदर कौन सी रेज ज्यादा पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर अगर अल्फा रेस के लिए 1 है तो बीटा रेस के लिए 100 टाइम्स है और गामा रेस के लिए 10,000 टाइम्स है। यानी सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेस की, फिर बीटा रेस की और सबसे कम होती है अल्फा रेस की। सो लेट अस लुक एट द रीजन फॉर दिस। अल्फा रेस का पेनिट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल बिकॉज ऑफ लार्ज मास एंड स्मॉल वेलोसिटी। इनका मास सबसे बड़ा है और वेलोसिटी सबसे कम है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होंगे या ऐसी जो रेज होंगी वो उतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। So they penetrate only very thin aluminium foil। बीटा रेस की बात करें तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर 100 टाइम्स ज्यादा है, मोर पेनिट्रेटिंग ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई वेलोसिटी। इनका साइज भी छोटा है, मास भी कम है और वेलोसिटी भी ज्यादा है, और इसलिए ये बुलेट की तरह, बुलेट जैसे छोटी होती है साइज में और स्पीड ज्यादा होती है, तो बुलेट की तरह ये ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे मैटर के अंदर। दे पेनिट्रेट अबाउट 2 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये तो बहुत ही थिन एल्यूमिनियम को पेनिट्रेट करता था, ये फिर भी ठीक ठाक यानी 2 मिलीमीटर के एल्यूमिनियम को पेनिट्रेट कर जाते हैं। पर सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेज की, वेरी हाई बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी एंड नॉन मटेरियल नेचर। तो दे आर बेसिकली रेडिएशन, जैसे एक्स रेज होती हैं वो तो हमारी बॉडी के भी आर पार हो जाती हैं। तो सिमिलरली गामा रेज ये भी सिर्फ रेडिएशन है, दे आर नॉन मटेरियल इन नेचर। सो देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई, ऑल्सो दे हैव वेरी हाई वेलोसिटी एंड दे कैन पेनिट्रेट इवन डेंस मैटर। लेट अस लुक एट द सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड दैट इज आयोनाइजिंग पावर। मैंने आपको बताया था आयोनाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गैस है और उस गैस के ऊपर हमने अल्फा बीटा या गामा रे डाली, तो अगर इन रेज ने उस गैस के एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया तो क्या बचेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस या फिर आयोनाइजिंग पावर ऑफ दीज रेज। सो लेट अस कंपेयर द आयोनाइजिंग पावर। अल्फा रेज का आयोनाइजिंग पावर इज क्वाइट हाई क्योंकि ये काफी बड़ी रेज है, इनका मास काफी ज्यादा है, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। तो देयर आयोनाइजिंग पावर इज क्वाइट हाई। ऑन द अदर हैंड बीटा रेज, देयर आयोनाइजिंग पावर इज स्मॉल बिकॉज ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी। किसी गैस को आयोनाइज करने के लिए क्या जरूरी है कि काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारी रे उसको स्ट्राइक करे और उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। पर बीटा रेस ये खुद इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये काफी लो होती है और इस वजह से देयर आयोनाइजिंग पावर इज ऑल्सो क्वाइट स्मॉल। फिर गामा रेस, दे कॉज आयोनाइजेशन बट इन एन इनडायरेक्ट मैनर। डायरेक्टली ये आयोनाइजेशन कॉज नहीं करती है, देर आर सम सेकेंडरी इफेक्ट्स ड्यू टू विच दे आर एबल टू कॉज आयोनाइजेशन। Now, the last property is action on ZNS and photographic plates। देखिए ये जो ZNS है ये ल्यूमिनोसिटी शो करता है, यानी ये ग्लो करता है अगर इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर रेज गिरे।
तो आइए देखें अल्फा रेज क्या करती है। अल्फा रेज आर एबल टू एक्साइट ल्यूमिनोसिटी ऑन ZNS and affect photographic plates. Beta rays have little effect on ZNS and photographic plates. Gamma rays affect photographic plates but not ZNS. इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए गामा रेज नेचर में किससे सिमिलर है, एक्स रेज से। और एक्स रेज तो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, तभी तो हमारा जो एक्सरे निकल कर आता है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर ही तो निकल कर आता है। तो सिमिलरली गामा रेज ऑल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट बट दे डू नॉट अफेक्ट ZNS। नेक्स्ट हम देखेंगे द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और द थ्योरी ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। आइए, इसके नाम से डरिए मत, थ्योरी इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। रदरफोर्ड एंड सॉडी proposed the following theory of radioactive disintegration. The atom of a radio element is unstable. The radio element मतलब radioactive element. So the atom of a radio element is unstable, and so it undergoes a spontaneous decay or change. During this change, the nucleus of the radio element emits an alpha or beta particle and forms the nucleus of a new element. तो गौर पे देने लायक बात क्या है कि अल्फा या बीटा पार्टिकल कहां से एमिट होगा, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एलिमेंट। और वो क्या बना लेगा, एक अल्फा या बीटा पार्टिकल्स इमिट कर कर वो नए एलिमेंट का न्यूक्लियस बना लेगा। यानी यहां पर चेंज कैसा होगा, न्यूक्लियर चेंज विल टेक प्लेस ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल। अब आगे देखिए, ये जो नया एलिमेंट बना है हो सकता है ये भी अनस्टेबल हो और ये भी एक पार्टिकल इमिट कर कर फिर से कोई और नया एलिमेंट भी बना सकता है। So the new element may be unstable and emit a particle and form yet another new element. There may in fact be a succession of radioactive transformations until finally a non-radioactive stable element results. तो सक्सेशन ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, एक के बाद एक ढेर सारे रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं अंटिल फाइनली एक नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल एलिमेंट ना बन जाए। और ये जो फाइनली जो नॉन रेडियो एक्टिव या स्टेबल एलिमेंट बनेगा वो यूजुअली लेड का कोई आइसोटोप ही होता है। सो अब एक और इन्होंने कुछ और भी बातें कही थी रदरफोर्ड एंड सॉडी ने इसी लॉ के साथ। तो उन्होंने ये बोला था कि द रेट एट विच रेडिएशंस आर इमिटेड डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ इट्स केमिकल कॉम्बिनेशन। सो 1 gram of radium present as radium or radium chloride or radium sulfate have the same activity। मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ रेडियम है, अब वो 1 ग्राम रेडियम के रूप में है या 1 ग्राम रेडियम क्लोराइड के रूप में है या 1 ग्राम रेडियम सल्फेट के रूप में है, वो मैटर नहीं करेगा, दे ऑल विल हैव सेम एक्टिविटी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना, ये न्यूक्लियस के अंदर से होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होते हैं हम जानते हैं कि उन पर टेम्परेचर और प्रेशर से फर्क पड़ता है, बट जितने रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं उन पर टेम्परेचर और प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, ये न्यूक्लियस के अंदर से होते हैं, ये इनको बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनसे फर्क नहीं पड़ता। सो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस। हम देखते हैं द मैकेनिज्म ऑफ अ रेडियोएक्टिव चेंज।
The basic requirement for a spontaneous nuclear process is that the mass of the parent nucleus is more than the sum of the masses of the daughter nucleus and the emitted particle. यानी ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका मास डॉटर न्यूक्लियाई प्लस इमिटेड पार्टिकल उन दोनों के कंबाइंड मास से ज्यादा होना चाहिए। जबकि केमिकल रिएक्शंस में तो ऐसा नहीं होता, जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वही प्रोडक्ट्स का मास होता है। पर यहां हम क्या कह रहे हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस का मास should be more than the sum of the masses of the daughter nucleus and the emitted particle. So, a radioactive change is accompanied by a small decrease in mass. यहाँ पर law of conservation of mass true नहीं रहेगा. There will be a small decrease in mass whenever a radioactive change takes place. अब ये जो मास में लॉस हुआ कि जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका मास डॉटर न्यूक्लियस और इमिटेड पार्टिकल से ज्यादा था, तो ये जो मास में लॉस हुआ है वो लॉस कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। द लॉस्ट मास appears as an equivalent amount of energy carried by the alpha or beta particle and frequently by the gamma ray photon. It has been shown that elements with atomic number greater than 83 are basically unstable. यानी 83 से बड़े एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं they are radioactive elements. So that's it for this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉडी और रदरफोर्ड का एक और लॉ देखेंगे एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। थैंक यू।